Managing student behavior is not about shouting, hitting, threatening, and writing a bad remark in their diary anymore. In fact, स्टडीज ये दिखाते हैं that traditional discipline methods actually harm करते हैं student learning outcome को and teacher student के trust को. So how do you manage a classroom, especially in today's high pressure school environments? In this video, we will explore 4 evidence-based strategies that will help you reduce disruptions, improve classroom culture, and make teaching joyful again. आखिर तक इस वीडियो को देखें क्योंकि the 4th strategy is rarely openly discussed and शायद that is the most impactful. Namaste, my name is Nikhil and this is the Staff Room, a dedicated space for teachers where we discuss diverse topics related to the teaching profession. This video is brought to you in partnership with the GRD Trust based in Coimbatore. They run multiple educational institutes such as schools, colleges, and teacher training institutes with the motto, Savidya Yevimuktaye. Knowledge is that which liberates. Before we even get into behavior management strategies, elephant in the room को address करते हैं, corporal punishment. According to a 2021 report by Save the Children India, more than 65% of students in government and affordable private schools have faced some form of physical or emotional punishment. What is more concerning is that many teachers believe that this is the only way to maintain discipline in overcrowded classrooms. ये ज्ञान लग रहा होगा, नहीं? अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, then how do I teach without at least shouting? The answer is not to abandon discipline, but to build it differently. 2019 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 1522 क्लासरूम्स को स्टडी किया. उन्होंने पाया कि पॉजिटिव स्टूडेंट बिहेवियर इज वन ऑफ द टॉप प्रेडिक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स, इवन मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस. तो 4 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देखते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट के. These are not just theories, they are grounded in research and lived experiences of many teachers, including mine. पहला strategy, setting clear and simple expectations. साल के पहले कुछ दिन are not just about introductions and seating arrangements. It is about setting culture. One of the most simple but powerful tools in behavior management is setting clear and simple expectations upfront. यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के करी स्कूल के एक रिसर्च ने पाया दैट क्लासरूम्स जहाँ पे रूल्स एंड रूटीन्स स्टूडेंट्स के साथ को क्रिएट किया गया, 35% लेसर बिहेवियर डिस्रप्शंस थे. इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट टॉक व्हेन आई एम टॉकिंग, अपने बच्चों से पूछिए व्हाट डज रेस्पेक्ट लुक लाइक इन आवर क्लास. उनके जवाब को बोर्ड पर नोट कीजिए. नाउ आपका रूल आपका नहीं रहा, उनका भी हो गया. बस ये ध्यान रखिए कि रूल्स सिंपल और क्लियर होने चाहिए. फॉर इंस्टेंस, डोंट ईट इन क्लास इज नॉट अ गुड रूल. लंच के टाइम पे कहाँ पे खाएं, ये रूल हो सकता है. ईट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम ओनली. वंस दीज रूल्स आर बिल्ट, आप इनको रीइंफोर्स कर सकते हैं विद समथिंग कॉल्ड द बिहेवियर ट्रैकर. दिस कैन वेरी वेल बी अ वेरी सिंपल चार्ट विद स्टूडेंट नेम्स एंड स्पेस फॉर राइटिंग पॉइंट्स. आपने एक स्टूडेंट को देखा रूल फॉलो करते हुए, +2 पॉइंट्स जोर से बोलिए और चार्ट पे +2 लिखिए. अगर आपने एक स्टूडेंट को देखा रूल ब्रेक करते हुए, -2 पॉइंट्स बोलिए और चार्ट पे -2 लिख दीजिए. लेकिन आपको इसमें कंसिस्टेंट और फेयर रहना पड़ेगा. ऐसा ना हो आपने इसको 2-3 बार किया और उसके बाद इग्नोर कर दिया. इफ यू इग्नोर इवन वन स्टूडेंट फॉर ब्रेकिंग अ रूल एंड पेनलाइजिंग समवन एल्स फॉर द सेम थिंग, आप सिग्नल ये भेज रहे हैं कि पॉइंट्स आपके मूड पर डिपेंडेंट है और क्लास के रूल्स पर नहीं. अब आते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी पे, रूटीन्स. बिहेवियरल इशूज आप ज़्यादातर कब देखते हैं? एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, इन बिटवीन क्लास, in between 2 periods, when students are lining up, when students are removing books, जब भी होता होगा. This is when routines matter. Routine students को robot बनाने के बारे में नहीं है. Instead, they provide clarity and reduce confusion and anxiety, especially for those who struggle with self-regulation. मैं जब पढ़ाता था, मेरे क्लास में जब भी मिड डे मील का बेल बजता, सारे बच्चे भागना शुरू करते हैं. इस वजह से कोई वहाँ गिरता, कोई यहाँ गिरता, कोई उससे झगड़ा करता, कोई इससे झगड़ा करता एंड व्हाट नॉट. तो मैंने मिड डे मील के लिए एक रूटीन बनाया. जब भी मिड डे मील का बेल बजे, सारे बच्चे एक लाइन में आके खड़े होंगे एंड दिस वाज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. पहले फर्स्ट बेंच आता, डोर के पास खड़ा होता, फिर सेकंड बेंच के बच्चे, फिर थर्ड बेंच के बच्चे एंड सो ऑन. इस रूटीन का मैंने पूरा प्रैक्टिस करवाया मल्टीपल टाइम्स. उसके बाद जब भी मिड डे मील का बेल बजता, आई वुड गो स्टैंड नियर द बिहेवियर ट्रैकर. जो भी बच्चा
इस रूटीन को फॉलो करे उनके लिए +2 पॉइंट्स। विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज ये एक हैबिट बन गया सारे बच्चों के लिए, एंड विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स मुझे बिहेवियर ट्रैकर का यूज भी नहीं करना पड़ा। आप भी ऐसे सिंपल रूटीन्स बिल्ड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एंटरिंग अ क्लासरूम, टू गिविंग होमवर्क, टू पासिंग नोटबुक्स, टू आस्किंग फॉर हेल्प एंड सो ऑन। बट रिमेंबर, आपको ये सारे रूटीन्स प्रैक्टिस करवाने पड़ेंगे, जस्ट लाइक हाउ यू टीच सब्जेक्ट्स। पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर मॉडल कीजिए, फिर उसको रिहर्स कीजिए, फिर मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए एंड सो ऑन। अब आते हैं थर्ड स्ट्रेटजी पे, रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर एंड नॉट जस्ट पनिशिंग द नेगेटिव वंस। ये शायद बेसिक लग रहा होगा आपको, बट मेनी टीचर्स स्पेंड अ लॉट मोर टाइम करेक्टिंग मिसबिहेवियर रादर देन रीइंफोर्सिंग गुड बिहेवियर। 2020 में जेपैल ने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एक स्टडी किया। They found that when teachers used praise like specific positive feedback and tokens for good behavior, attendance improved and disciplinary actions reduced by 28%. So instead of saying good job Rahul, say I like how Rahul is raising his hand before speaking. This shows respect. इससे राहुल का तो फायदा होगा ही, लेकिन आप बाकी बच्चों को भी मैसेज भेज रहे हैं कि उनको कैसा बिहेवियर दिखाना चाहिए। आप स्टार ऑफ द डे और पीयर रिकग्निशन जैसे टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। मिडिल एंड हाई स्कूल क्लासेस में गोल ट्रैकर्स, क्लासरूम पॉइंट्स के साथ पीयर रिकग्निशन मैटर कर सकता है। ये हो गई बात पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब मिसबिहेवियर को कैसे मैनेज करें? इसके लिए आपको एक लैडर क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू पनिशमेंट्स। अगर एक स्टूडेंट लाउडली बात कर रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कि उसका पीटी पीरियड कैंसिल हो गया। लाउडली बात करना और पीटी पीरियड कैंसिल करना एक ही लेवल पर नहीं है। फर्स्ट मिस्टेक पर आप चाहे एक वार्निंग दें, सेकंड मिस्टेक पर पॉइंट्स रिड्यूस करें, थर्ड मिस्टेक पर पॉइंट्स ज्यादा रिड्यूस करें, लेकिन इस बार आप ये बोलिए कि अगली बार मिस्टेक करने पर पीटी पीरियड कैंसिल हो सकता है। अब फिर से मिस्टेक हुआ तो पीटी पीरियड कैंसिल कीजिए। इस लैडर्ड कॉन्सिक्वेंस से आप बच्चे को अकाउंटेबिलिटी सिखा रहे हैं विदाउट फियर। अब आते हैं फोर्थ स्ट्रैटेजी पर, प्रिवेंटिंग डिसरप्शन। आप एक्सट्रीम स्टूडेंट मिसबिहेवियर को कैसे मैनेज करेंगे? मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स आर फिजिकली फाइटिंग विद ईच अदर। आप पॉइंट्स तो ऊपर नीचे नहीं करेंगे इस सिचुएशन में, आपको फिजिकली जाकर उनको सेपरेट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने आपके ऊपर पानी फेंका, आप उनके ऊपर तो वापस नहीं पानी फेंकेंगे। द पॉइंट इज, आप इन सिचुएशंस में पैसिव नहीं रह सकते। यू हैव टू बी वेरी इंटेंशनल अबाउट योर रिस्पॉन्सेस। आपको इन सिचुएशंस के बारे में पहले ही सोचकर आपका रिस्पॉन्स प्री डिसाइड करना पड़ेगा। बट एक तरीका है जिससे ये सिचुएशंस आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। और 2017 रिपोर्ट बाय यूनेस्को टाइटल्ड स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग emphasizes that positive student-teacher relationship is the single biggest protective factor against bullying, aggression, and absenteeism. Regularly, maybe once in 2 weeks, आप हर स्टूडेंट के साथ एक चेक इन कीजिए। उनको उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछिए, उनके घर परिवार के बारे में पूछिए, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए वगैरह। हैदराबाद में जब मैं पढ़ाता था, बिकॉज आई न्यू द बैकग्राउंड्स ऑफ एवरी सिंगल चाइल्ड इन माई क्लासरूम, मैं पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन कर पाता। एक स्टूडेंट जो क्लासरूम में बहुत डिसरप्टिव था, उसका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट वाज आई वुड इन्फॉर्म हिज एल्डर सिस्टर जो 6th क्लास में थी। ही लुक्ड अप टू हर अ लॉट and did not like her scolding him. A little connection like this can go a long way in dealing with behavioral problems. Managing classroom behavior is hard. It's emotionally draining, especially so in overcrowded classrooms and schools with limited support. लेकिन behavior को आपको सिखाना पड़ेगा, just like you teach your other subjects. Remember, you're not just teaching subjects, you're shaping behavior. And behavior, like academics, improves with care, कंसिस्टेंसी एंड ग्रेट टीचिंग। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल बिहेवियर मैनेजमेंट टूल्स को इकट्ठा करके डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक किया है, आप उन वीडियोस को यूज कर सकते हैं। व्हाट बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हैज वर्कड इन योर क्लासरूम? हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम सब एक दूसरे से सीख पाएं।